Okay, I think we should start now. It is already 10 past 8 minutes, so we should not wait more for the students. Do you hear my voice? आवाज आ रही है बेटा सबको? Let me confirm first. You can text in the chat box. Do you hear my voice? Is it clear? बेटा मेरी आवाज आ रही है? Okay, that's good. Thank you. So I think let's start our today's lecture. So I hope that you have enjoyed our last lecture. The continuity of the same lecture. In the previous lecture, we have with disturbance of the electricity. I don't know the situations of today. I hope so that the same problem will not happen today. So in last class, we discussed that why infrastructure is moving from simple towards complicated. There was different reasons we discussed, right? So, due to the complex infrastructure, the result of our history of application implementation projects, complex इसलिए हो रहा है कि different जो application projects हैं वो ज़्यादा historical और complex application हो रही है, इसलिए उनके लिए infrastructure भी ज़्यादा complex होना चाहिए. उनकी application के लिए if we need a specialized hardwares, different infrastructure, different resources. When some application may need databases, some applications may need different kind of server, some applications may need different kind of platforms. On the basis of the complex applications, we are moving towards the complex infrastructure components. Okay, why infrastructure is important? Because it's benefits to the organizations. In sense of what? Flexible agility और agility जिसको हम कहते हैं. अच्छा ये agility एक new term है, शायद आपको समझ में ना आए. Because agility उस चीज को कहा जाता है means something which accept changes. That is agility in software engineering. ये term in software engineering में use होता है agility process. आप next year में जाकर पढ़ेंगे तो ये. अच्छा flexible agility होती है when there is infrastructure. So, or the architecture, it is possible for the organizations, they can get benefits and they can modify or customize according to their requirements. That is called flexible and agile. Agile means the system or the infrastructure that can accept the changes quickly. But the flexibility means whatever customers want, the system or the infrastructure should accept the required changes. That's why the infrastructure and the architecture, they both are beneficial for the organizations. For example, if infrastructure is not flexible and agile, then what will happen? Of course, there wouldn't be any modification. For example, you have a laptop, let's suppose Core i5, but in your laptop there is no capability to improve the processing power, then it is not flexible and agile. But most of the laptops there is flexibility and agility. How? For example, in my laptop the previous memory is 4 GB RAM. I wanna increase the RAM. Then what I should do? I should go to the shop and ask the shopkeeper to please insert another RAM that is 4 GB. Then 4 plus 4, it will be 8 GB. So what happened? My system
my computer or laptop's architecture or infrastructure accepted that new change. उससे क्या हुआ, मुझे फायदा हुआ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो गया कि हाँ भाई इसकी अब परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और काम कम पैसों में. If it wouldn't happen, then what was the solution? I should buy a new laptop. Maybe it may cost around 80,000. क्योंकि मेरे प्रीवियस लैपटॉप में अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होती रैम चेंज करने की या प्रोसेसिंग इंक्रीज करने की या मेमोरी इंक्रीज करने की, तो मुझे न्यू लैपटॉप खरीदना पड़ता. बट थैंक्स गॉड इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी. द लैपटॉप कैन एक्सेप्ट द चेंजेस, राइट? दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल. जो 80,000 में काम होना था वो मेरा 2-3 हजार में काम हो गया. तो that's why it is important the architecture should be more flexible and agile. When agile is required, we need to see 3 things: solid, scalable, and modular. Agile infrastructure में ये 3 चीजें important है. There should be solid things. स्केलेबिलिटी होनी चाहिए. व्हाट इज स्केलेबिलिटी? सॉलिड को आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी एक्यूरेट, परफेक्ट. ओके, परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती. देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ चेंज, रूम ऑफ इंप्रूवमेंट. एंड लेट्स व्हाट इज स्केलेबल मींस द इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन मॉडिफाई, इंक्रीज और डिक्रीज. आप उसको इंक्रीज कर सके एज पर योर रिक्वायरमेंट और इसको आप रिड्यूस कर सके. Because you have more requirements, you don't need extra systems, extra infrastructure. That's why you can reduce it. So the infrastructure must have flexibility of scalable. And then modular base. It should not be constant. अच्छा, कुछ आपने देखा होगा if you will buy a Chinese mobile, if I'm not wrong, I'm talking about Xiaomi. ओके, मी मोबाइल आजकल चाइना में आ गई, चाइना की मोबाइल पाकिस्तान में आ गई है. तो यू विल सी हियर उसमें एक चीज दैट आई डोंट थिंक सो दैट इज मॉड्यूल बेस्ड. अब उसकी बैटरी फिक्स होती है, यू कैन नॉट रिमूव द बैटरी until unless you go to the shopkeeper and ask for the battery and also the battery is built in there. But in Samsung you can remove the battery. Module based systems are very flexible and easy to scalable. क्योंकि मॉड्यूल बेस्ड मीन्स कंपोनेंट बेस्ड. इफ यू टॉक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, if you have gone through the different modules in C++, I don't know, you know about the modules. Do you know the modules in C++? Anybody? In language? हाँ जी, कोई माइक अपना ऑन कर दे, बताए. मॉड्यूल का पता है किसी को प्रोग्रामिंग में? Anyone? Yes or no? कोई तो बता दे, हाँ या ना में जवाब दो. नो सर. नहीं पता. अच्छा, कोई मसला नहीं है, कुछ बोला भी करो. ओके, यू मस्ट. I want my class to be interactive. I will not conduct your class, just deliver the lecture, whether you listen or not. No, I want to see everyone active in my class. Everyone is participating in Q&A sessions and all these things. And during the lecture, I always ask questions. You are fortunate that you are not face to face today, but inshallah, after a few days, we will be in the class room. So if you don't know, this is not a big thing. We will learn. No, don't be silent. Modules means in different, divide something in different parts. If you're talking about the programming, module-based programming means divide your program into different classes or the functions. So it will be easy, manageable. एक प्रोग्राम करना है जिसमें मुझे कैलकुलेटर बनाना है. What I have to do? या तो मुझे सारा कैलकुलेटर एक ही फंक्शन में लिख ले, या डिफरेंट फंक्शन बनाए. एडिशन का फंक्शन बनाए, दैट इज वन मॉड्यूल. सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाए, मॉड्यूल 2. मल्टीप्लिकेशन का वो बना ले.
फंक्शन मॉड्यूल 3 एंड डिवीजन का फंक्शन बना रहे, ये मॉड्यूल हो गए। अच्छा, इसमें क्या होगा, इट विल हेल्प यू इजीली अंडरस्टैंड, इजीली टू रिमूव एनी काइंड ऑफ द एरर, मैनेज करना कोड को आसान हो जाता है मॉड्यूल बेस्ड कोड। Similarly, same technique is applied on the infrastructure. The infrastructure भी मॉड्यूल बेस्ड, एक चीज बिल्कुल बनी ना हो जिसको मॉडिफाई करना भी मुश्किल हो जाए। So architecture is always circular. It starts and it ends to the same point. So there is the room of improvements in the architecture every time. So it is designed accordingly. So it can accept the changes. When it accepts the changes, that's why it is called circular. Means it is starts, then different modules are integrated, then it ends to the same point. Again, we will check if there is improvement in our architecture or infrastructure, then we again start from the starting point and check all these things. So let's talk about the architecture. Is the philosophy that underlies a system and defines the purpose and the structure of the system. अच्छा, आर्किटेक्चर क्या होता है, पर्पस और स्ट्रक्चर को बनाता है। एक घर का आर्किटेक्चर है, वो घर का स्ट्रक्चर बना और उसका पर्पस भी डिक्लेयर करता है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, हाउ मेनी रूम्स शुड बी देयर, वेयर शुड बी टीवी लॉन्च एंड पार्क, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आर्किटेक्चर, दिस इज फॉर हाउस, ऑफिस और the plazas or whatever. So ये आर्किटेक्चर के दो चीजें मैक्सिमम बताते हैं कि पर्पस क्या है और उसकी स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। Various kinds of architecture could be. आप आईटी में बात कर लें तो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आएगा। आप बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग के बात कर लें उसका आर्किटेक्चर आएगा। आप ब्रिजेस की बात कर लें, आप रोड्स की बात कर लें, आप घरों की बात कर लें, आप एप्लीकेशन की बात कर लें, आप डेटा सेंटर की बात कर लें, या आप सर्वर्स की बात कर लें। सो ईच एंड एवरी आर्किटेक्चर हैज यूनिक एंड वैल्यूज, अपनी अपनी इसकी यूनिकनेस होती है, वैल्यूज होती है। हाउ यू मेक, you can ask the question, how are they unique? For example, the architecture of application or the software is different from the architecture of a house. Application has different features, different values, different functionalities, and the architecture of a house has different values, features. उसमें कमरे होते हैं, बेडरूम होता है, टीवी लॉन्च होते हैं, वॉशरूम होते हैं आपका, और एप्लीकेशन में वो चीज़ नहीं होती। इंटरप्राइज और एक डेटा, जो डेटा का आर्किटेक्चर है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चर। जो हम डेटाबेस बनाते हैं, अगर आपने शायद अभी तक काम किया है कि नहीं, डेटाबेस इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। सो the main point or focus point is that there are different kind of architecture, and each and every architecture has unique feature. Due to their uniqueness, they are different from each other. So let's talk about the infrastructure, because our subject is related to infrastructure. So basically, infrastructure is the combination, we can say, of two words, the infra and the structure. The infra is the Latin word. Infra, जैसे infrared होते हैं, ठीक है, ये infra जो है ये Latin word है, and the structure is English word. So when they are both combined, they are the infrastructure. अच्छा, infra Latin में किसको कहते हैं? Means beneath. Beneath का मतलब क्या होता है? अंडर ऑफ समथिंग। सो इस चीज से एक चीज क्लियर होती है, द थिंग व्हिच इज नॉट विजिबल टू द कस्टमर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप. WhatsApp is an application, but you don't know where it is installed and how it is processed. You don't know. WhatsApp का सर्वर कहाँ पे है, कहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, you don't know. So जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पे ये स्टोर है,
सर्वर पे दैट इज beneath of you, that is under you, you don't know, that is hidden to customer. That's why that is called infrastructure. जो एप्लीकेशन आपके पास है, that is not infrastructure. Okay, I'm sure that you understand. So your infrastructure encompasses all components that are. सर सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ नहीं आया. कौन है जी? किसको नहीं आया बेटा? मैं बावल. बावल जी सर. हाँ हाँ बावल बेटा. इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज मोस्टली उसको कहते हैं जो चीज आपको आईटी के लिहाज से बेटा बात कर रहा हूँ, दूसरे लिहाज से नहीं. जी जी सर. जो चीज आपको नजर ना आए या बिहाइंड द सीन हो, इसलिए इसको कहते हैं इंफ्रा. इंफ्रा का मतलब है कि पीछे की तरफ या बीनीथ या नीचे, अंडर. फॉर एग्जांपल you have an application running on your mobile. बेटा आप अपनी माइक ऑफ कर दे. बावल अपनी माइक ऑफ कर दे. सो अगर आपके पास एक एप्लीकेशन चल रही है, दैट्स व्हाट्सएप, तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन चल रही है, मगर आपको पता है वो प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, किस सर्वर पे स्टोर है. डू यू नो दैट? नहीं, आपको पता ही नहीं उस चीज का, क्योंकि वो बिहाइंड द सीन है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है पीछे के सीन. वो जो जहाँ पे स्टोर है, जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, वहाँ पे जो चीजें पड़ी हैं, जो आपके सिस्टम है, जो आपके सर्वर्स हैं, उन चीजों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है? हाँ बाबा. यस सर. समझ आया? मींस के जो बिहाइंड द सीन हो, जो हमें मींस के जाहिर तो हमें मौजूद नहीं हो, लेकिन not visible to you, not visible to the customer. Yes, it's not visible to us, but it is. It is there, of course. It is behind the scene. Yeah. You are using WhatsApp. बेटा उसका कोई तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ पे वो चल रही है. Yes sir. आपका डेटा कहाँ पे तो स्टोर होगा, ये एप्लीकेशन कहाँ पे तो इंस्टॉल या इंप्लीमेंट हुई होगी, आपका डेटा कहाँ पे तो स्टोर हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा. वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप अभी देख नहीं रहे. मींस एंड यूजर की बात कर रहा हूँ. ठीक है? So there are different components which can be invisible or not visible to the end user. Where the structure can be instance or city, a house or an information system. किनकी बात सॉरी. सिटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, हाउस का भी ले सकते हैं, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं. So let's talk about the definition of IT infrastructure. There are a lot of definitions. There is no fixed definitions. When you will Google it, what is IT infrastructures, you may find different definitions from different authors. So it is not a single focused definition. So we may have 1, 2, 3 definitions of IT infrastructure. The IT infrastructure consists of equipment. जैसे मैंने बोला वो behind the scene होता है. We need different equipments, for example servers, processing power, system, softwares. सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे अब हमारे होते हैं, डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, and services. Different kind of services are running over there. ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, used in common across an organization regardless of mission. अच्छा, वो कॉमनली सबके लिए यूज होते हैं, कोई उसका पर्पस नहीं होता. I'm sorry, give me a break. I should take 1 glass of water. I will join you. Give me 2 minutes, bro. बावल समझे में जियो सर
बस हुन वारी ॻाल्हि में छा ॻाल्हि कयां तुंहिंजे नेड़नि जी। तो मां देश अचे तुंहिंजे देश मां मां चई त सही हुयमि। ब्रेक ते पेर बाबा, ब्रेक ते पेर। यार ख़बर थी छा आहे, असांजे कुझु दोस्त खे इस्लामियात इंग्लिश में सम्झ में न पिया आयो। हाँ ये हकीकत आहे। असांजे उन्हनि दोस्तनि खे अलाह करे रुॻी ही सम्झ में अचे, न त कॉन्टेक्ट कनि वरी मां सर खे चवां हिते चवांसि तव्हांजे साम्हूं जेके चेस बॉल हा न मूंखे अच्छा ये अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि बावल जी जी ए सर उर्दू में पढ़ाई कोन सघंदो सर, तव्हां मसलो आहे पढ़ंदा आहिनि सर को हैबिचुअल आहे इंग्लिश स्पीकिंग। मां चवांसि थो भले म्यूचुअल हुजे, असां हिते असांजी क़ौमी ॿोली उर्दू आहे, असांजी मदर टंग सिंधी आहे। तव्हां भले असांखे इंग्लिश में ॾियो पढ़ायो, पर मुतालियो हुनजो जेको आहे उहो त उर्दू में या सिंधी में करे ॾियो न असांखे। सही। इहो सिर्फ़ु असां भले ठीकु आहे तव्हां मां सर अची वियो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस आई एम बैक। हाँ सर, बात थी कि हाँ बाबू ॿुधायो। हाँ सर, कुछ सर स्टूडेंट्स अहिड़ा आहिनि जेके सफ़ा इंग्लिश सम्झ में नथी अचे। पोइ उन्हनि जे लाइ मां चयो सर, छो जो लास्ट टाइम इस्लामियात जो असांजो जंहिं क्लास थींदो हो त सर इस्लामियात उर्दू जे या सिंधी जे बजाए फुल इंग्लिश में पढ़ाई हुई। तो उन्हनि छोकरनि जो इहो ई मसइलो, उन्हनि छोकरनि बल्कि सभिनि जो इहो मसइलो हो त सर इंग्लिश में न बस सिंधी थोरी पढ़ाए। पोइ मां चयो साईं खे गुज़ारिश कयां जेकॾहिं ईअं थी सघे त। हाँ वो मिक्स मोड हलंदासीं। ॾिसो इंग्लिश में तव्हां यूनिवर्सिटी हाणे कंहिंजे स्टूडेंट्स आहियो, यू हैव टू लर्न। अगर इंग्लिश तव्हांजी वीक आहे त बाबा उहो सिखी वठे। यूट्यूब ते कोर्सेस भी आहिनि, डिफरेंट कोर्सेस भी आहिनि। सर हिन ॻाल्हि खे असां सम्झूं था, दोस्त वरी चवंदा था मैडम मां कोशिशि कंदो त मिक्स मोड में हलां, ठीकु आहे न। जी सर। त सुभाणे तव्हांखे वरी लिखणियूं शयूं इंग्लिश में पवंदियूं, त पोइ जेकर तव्हांजो सॼो सिंधी या उर्दू में लेक्चर हलंदो न, तव्हांजे राइट अप में ॾाढियूं मिस्टेक्स थींदियूं। छो जो तव्हांखे उन्हनि खे रिकॉल न करे सघंदो, तव्हां उनखे उर्दू इंग्लिश खे ट्रांसलेट न करे सघंदो, ॾाढो ॾुखियो थींदो तव्हां लाइ। जॾहिं पेपर में उन खे शइ खे ट्रांसलेट कंदो न, पोइ तव्हांजे जुमिला माना तव्हां लिखणु हिकु शइ चवंदो, लिखिजी ॿी शइ वेंदी। सही ॻाल्हि आहे। ॾाढो मज़ो। सो मां कोशिशि कंदो मिक्स मोड हलां, ठीकु जी आहे। सर। जिते तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ न अचे त उते मां वरी उर्दू या इंग्लिश सिंधी में एक्सप्लेन करण लाइ तयारु आहियां। ओके, और सर मां कोशिशि असां दोस्त कुछ शायाब आहिनि त उहो वरी कोन ॿुधाईंदा त साईं सम्झ में न आयो। नहीं बेटा ॿुधाइणु खपे, कोई इशू न आहे। ॾिसो असां वटि हिकु ॾाढो बहितरीनु मुहावरो आहे, पुछणा न मुंझणा। हाँ। We are here to learn, nobody is expert. अगर तव्हां एक्सपर्ट हुजो हा तव्हां हिते सिखणु छो आया आहियो। अगर तव्हांखे शइ जी ख़बर हुजे हा त तव्हां यूनिवर्सिटी छो जॉइन कयो आहे। सही ॻाल्हि Means you don't know the things. That's why you are here to ask the questions. आहे। I 100%। always encourage my students to ask the questions, beta. If I don't know बस the answers, I will let you know tomorrow. Because वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मैं कुल्ले इल्म नहीं हूँ। देखो इंसान सही में बात, खामियां होती हैं, सही मगर बात। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछें ही ना। अपने आप को पूछने की हिम्मत पैदा करें। आगे बढ़ना है तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर बॉक्स। जब तक आप अपने बॉक्स से बाहर नहीं आएंगे बेटा, यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद दिस वर्ल्ड। ये दुनिया कंपटीशन के अलावा और कुछ नहीं है। आप पीछे रह जाओगे। यही मौका है सीखने का। या सीखने आए हैं, आपको कोई इंसल्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती। सीखें यार, यूट्यूब पे पढ़ा है, सारा दिन व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हो, 1 घंटा यार यूट्यूब पे इंग्लिश सीख ले। वोकेबुलरी को 1 घंटा दे दे, डान थोड़ी पढ़ ले। दिस इज हाउ यू विल लर्न। ये 4 साल है जिंदगी के। आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड इन दिस 4 years। 4 साल में बेटा मेहनत करें, बाकी की जिंदगी मजे के गुजारें। या 4 साल में यहाँ पे मौज मस्ती करें, बाकी की जिंदगी बेटा वो तकलीफ दा होगी आप लोगों। सो डिसीजन इज योर्स। या तो ये 4 साल मेहनत करके आगे की जिंदगी आसान करें अपनी, या तो ये 4 साल यूनिवर्सिटी के एंजॉय करके अपना टाइम वेस्ट करके अपने जो कोई स्किल्स है उनको वेस्ट करके आगे की जिंदगी जो आपकी 50-60 साल है वो आप अपने लिए बहुत मुश्किल करेंगे। सही बात।
Okay, so try लोहे को hard. सर निकलना पड़ेगा। Platform for you guys to learn. If you don't understand, come in my office, ask me, sir, please explain this to me. I don't understand this. Then I will, of course, I am there for you guys, always. You can text me, you can WhatsApp me. I will try to answer your questions. But you should come out from your box and ask questions. Try to ask questions. एक बुर्दबारी पैदा करें हमारे स्टूडेंट्स में, ये चीज़ दुनिया में चले जाएं, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे देखें ना, ये ट्रेंड होता है कि स्टूडेंट्स मीन्स समथिंग, वो स्टूडेंट ऐसा होता है जो सोसाइटी को चेंज करता है। तो ये आगे लेक्चर जो देंगे ना, आगे ये मोटिवेशनल टॉक, ये इंशाल्लाह ड्यूरिंग क्लास में आप लोगों को कुछ और ज़्यादा ही मोटिवेशनल टॉक मिलेगी, ठीक है। सो रिमेंबर, मैं हमेशा लेक्चर ही नहीं देता, मैं बहुत कुछ स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से भी सिखाता हूँ चीज़ें, वो काफ़ी इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी स्टूडेंट्स के लिए, इंटरेस्टिंग भी होगी। सो लेट्स कंटिन्यू। यस सर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली काफ़ी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें आपका इक्विपमेंट्स आ गए, सिस्टम आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, डिफरेंट सर्विसेज आ गई, डेटाबेसेस आ गई, आपकी प्रोसेसिंग पावर आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो सर्व्स एज द फाउंडेशन अपॉन द। Sir, will you please share your screen? हाँ, Will you please share your screen, sir? oh, I'm sorry, it is not here. No, sir, it's not sharing. Just give me a minute. Oh, yeah. Okay. मेरी तबीयत भी ख़राब है, बुखार, गला ख़राब है, मगर फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि घंटे तक तो बैठ जाए हम। ऐसे कोई मसला नहीं है। So different kinds of services are also part of the infrastructure. जैसे कौन से सर्विसेज होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग पावर होता है आपका, स्टोरेज सर्विस होती है, डिफरेंट चीज़ें सर्विसेज में आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर वो आगे पढ़ेंगे, जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं वो पढ़ेंगे। सो दीज आर डिफरेंट डेफिनेशंस। एक ऑथर कहते हैं कि ऑल ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क फैसिलिटी ETC दैट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप, टेस्ट, डिलीवर, मॉनिटर, कंट्रोल एंड सपोर्ट IT सर्विसेज, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशंस होंगी, आप उसके साथ और आपके डेटाबेसेस हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी कंपोनेंट्स, इनको कंबाइन करके नेटवर्किंग हो गई, और ये सारी कंबाइन करके प्रोसेसिंग पावर या फैसिलिटीज़ जो देती है उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। सो डिफरेंट डेफिनेशंस है बेटा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा इट्स शेयरिंग, इट्स वर्किंग। नो सर, किसी इट्स और नॉट के पास, बेटा किसी और के पास शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। यस सर, हो रही है। बेटा शेयर बेटा चेक योर थिंग्स, इट्स शेयर्ड ऑलरेडी। Okay, so the definition of, again continue, definition is continue. What are the basic components of this infrastructure? Okay, so ये आप, if you can see this thing, this diagram, the basic components of the IT infrastructure are listed to the left side. If you will see, that is business process, information, application, server, building, electricity, all these are the part of infrastructure. When you combine all these things, so this is called IT infrastructure. So business process basically process the information which is relevant to the specific business. जैसे हमारी specific business application होती है,
किसी की दुकान की एप्लीकेशन, कोई ईआरपी एप्लीकेशन, ये सारी बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन। ओके, टू रन दैट एप्लीकेशंस हमें इंफॉर्मेशन चाहिए डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो व्हेन टू प्रोसेस द बिजनेस, सो डेटा के बगैर बिजनेस प्रोसेस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल इनवॉइस जनरेट करनी है, सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, वी नीड डेटा, वी नीड इंफॉर्मेशन। सो बिजनेस प्रोसेस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस डेटा को मैनेज करने के लिए वी नीड एप्लीकेशन। If we don't have application, we will be unable to manage the data. For example, आपको डेटा लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, या आपको एक दूसरे से चैट करने के लिए, यू नीड व्हाट्सएप एप्लीकेशन। व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपको चाहिए, उसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, वो बिजनेस प्रोसेस, वो बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन नहीं है। अगर कोई भी बिजनेस ओरिएंटेड का एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल एक शॉप की आपकी एप्लीकेशन है, मेडिसिन शॉप की ले लें, वो एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, वो बिजनेस पर्पस के लिए होती है, उसमें इंफॉर्मेशन आपका डेटा होता है, बस उस डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपकी एप्लीकेशन होती है, जहाँ पे आप इंटर करते हैं, जहाँ पे आप सेव करते हैं, जहाँ पे आप चीज़ें एडिट करते हैं, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करते हैं, ये एप्लीकेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा you wouldn't be able to manage, to process, to store the data. अच्छा, एप्लीकेशन किस पे चलेगी? वी नीड प्रोसेसिंग पावर, कोई सर्वर होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। सिंपल एप्लीकेशन की बात करें, कंप्यूटर होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन हार्ड डिस्क पे चलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, के जरिए हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। बिग एप्लीकेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, वाइबर, दे नीड सर्वर्स ऑन द बैक साइड, तो एप्लीकेशन हमारा सर्वर पे चलती है। अच्छा, उसके लिए, सर्वर के लिए यू नीड बिल्डिंग, सर्वर ऐसे ही तो नहीं रखेंगे धूप में, या और उसके लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज चाहिए। सो ये दीज आर थ्री ऑल दिस कंपोनेंट्स व्हिच वर्क्स कंबाइनली एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये राइट, इफ यू विल सी द राइट साइड एरो, so there are different categories of manager and users. So at this two things, if you will see electricity in building, this is infrastructure for system manager. System manager should manage this building and electricity, and after that the server, building, electricity, they are for the application users, क्योंकि ये तीनों चीजें एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी है। अगर सर्वर नहीं है तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सर्वर के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, बिजली चाहिए, वो नहीं है तो ऑफ कोर्स योर एप्लीकेशन विल नॉट रन और एग्जीक्यूट एंड आल्सो इंस्टॉल। उससे थोड़ा ऊपर जाए, देन यू हैव एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिजनेस लेआउट एनालिसिस। बिजनेस को एनालाइज करने के लिए यू नीड दीज थिंग्स, एप्लीकेशन, सर्वर, बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू डोंट हैव एप्लीकेशंस, ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजिंग द आईटी, देन वही आप 1950 में चले जाएंगे, वही मैनुअल काम स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन नहीं है तो बिजनेस को डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। सो अगर मैं कहूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम मैनेजर क्या है, उसमें ये आते हैं बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज क्लियर दैट व्हेन यू आर आस्किंग द infrastructure, you must be clear who you ask and what is their point of view. किससे आप पूछ रहे हैं, क्या इसका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस लिहाज से पूछ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर सिस्टम मैनेजर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ बिल्डिंग ठीक है, बिजली भी टाइम पे है, बैकअप भी है, सो ठीक है। तो इनकी ये पॉइंट ऑफ व्यू है मैनेज करने की।
अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन यूजर के लिए क्या है, तो वो बताएगा हाँ सर्वर ठीक काम कर रहा है बिकॉज एप्लीकेशन आर डिप्लॉयड ऑन द सर्वर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एनालिस्ट का पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई एप्लीकेशंस चल रही है, इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है, स्टोर भी हो रहा है एंड सो द पॉइंट इज हियर दैट व्हेन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर और किस लेवल की बात कर रहे हैं और किसके बारे में, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटीज के लिहाज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसका लेवल डिफरेंट हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में 3 लेवल्स बताए गए हैं। पहले नीचे के 2 जो आपके ब्लॉक्स हैं वो आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम मैनेजर में, और बाद में नीचे के 3 ब्लॉक्स वो आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एप्लीकेशन के लिए, और नीचे के 4 जो ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एनालिस्ट के लिए। बाकी के ऊपर इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस वो एक यूजर है, डेटा यूजर का होता है, ठीक है, या कंपनी का होता है, बिजनेस प्रोसेस भी कंपनी के रिलेटेड। बाकी ये जो नीचे के 4 कंपोनेंट्स हैं ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का वो होते हैं मैनेजमेंट का पार्ट। इवन दो बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन आर आल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। So most people, infrastructure is invisible and taken for granted, as we discussed. The majority of the people, they don't see the infrastructure, they only see the application. As I give you the application of WhatsApp, Facebook, Viber, YouTube and so on, you only see the application, you don't see the behind the scene, you don't see the server, you don't see the buildings, you don't see the how electricity is managed. Okay, but few people can see the infrastructure. For example, the managers, they are visible their infrastructure because they are supposed to manage the infrastructure. Okay? That's why we wrote here for most people. We use application every day, so this point is important. Point number 2, if you read that, but we don't know how they are implemented and where they are physically deployed. That is true. Just we are using the services, we don't know कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे डिप्लॉयड है, कब इंप्लीमेंट हुए हैं, कहाँ पे, कौन इनको चेक एंड बैलेंस कर रहा है, we are not concerned. वो हमसे दूर हैं, they are behind the scene. We just use the application. So the implementation and physical locations means better what? The location where the servers of that application is installed. हो सकता है वो सर्वर अमेरिका में हो सकता है वो यूके में हो सकता है वो सर्वर जर्मनी में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो. We don't know. Okay, because the implementation and physical location are invisible. Invisible means below the surface, infra, to use, and hence considered as infrastructure. Because we cannot see them, that's why we can say that these are the infrastructure of IT. I'm sure that now it is very much clear to you guys. So let's talk in more details about the building blocks of IT infrastructure. So basically the definition of infrastructure is depends on these components which are highlighted in this diagram. So if you will see this diagram, these are different building blocks shown to you. In the middle, you will see this one. This one is process or information, then application platform, then we have infrastructure. You see these things. There are different components for the infrastructure. Application, for processing informations, we need to manage different functions. So at this point,
At this point, data is processed at the top level. Process information means data is going to be processed. जैसे हमने previous diagram में देखा कि business process, यहाँ पे ठीक है सेम थिंग, बिजनेस प्रोसेस ये बिजनेस के लिए, और इंफॉर्मेशन मीन्स ये बिजनेस डेटा को प्रोसेस करेगा फॉर बिजनेस पर्पसेस. सो यहाँ पे वही सेम चीजें, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन मीन्स दिस बोथ ब्लॉक्स आर कंबाइंड, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बट इट इज सेम थिंग. ये मोर डिटेल्ड डायग्राम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. सो the information is processed in layer first, which is topmost layer, and that process is managed through different functions. So you will see functional management is here. Okay, उसके साथ second topmost layer is application layer. वो भी application layer जो आप customer use करता है. So it is not part of the infrastructure. जो आप application use कर रहे हैं, WhatsApp, वो आपको विजिबल है, बिहाइंड द सीन नहीं, वो नहीं पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो व्हाई वी यूज एप्लीकेशंस टू प्रोसेस द डेटा, टू मैनेज द डेटा, टू ऑर्गेनाइज द डेटा, टू स्टोर द डेटा. दैट्स व्हाई वी नीड एन एप्लीकेशन. सो वी नीड एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस, so where we can manage the application for the customers, for the end users. आफ्टर एप्लीकेशन आपको नजर आएगा थर्ड में, ये क्या है, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे एप्लीकेशन रन होती है. सर्वर प्लेज अ प्लेटफॉर्म, जावा सर्वर इज अ प्लेटफॉर्म. जावा की एप्लीकेशन है वो जावा पे चलेगी. ओके, .NET इज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर ASP.NET की कोई एप्लीकेशन है वो ASP.NET पे ही चलेगी. सी प्रोग्रामिंग करने के लिए वो किस प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होगी, उसके लिए सी को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे आपने कोई आईडी यूज की होगी तो वो प्लेटफॉर्म चाहिए. तो एप्लीकेशन रन कौन से सर्वर पे होगी, अगर जावा की है तो जावा सर्वर पे, .NET की है तो .NET पे चलेगी. सो वी नीड अ प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म को मैनेज करने वी नीड मैनेज डिफरेंट platforms, we need this component. उसके बाद हमारा different infrastructure use होते हैं components के. जैसे आपके end user devices होगी, आपकी जैसे मोबाइल हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं. कंप्यूट होगी, जहाँ पे हम कंप्यूट में डिफरेंट प्रोसेसिंग पावर, जैसे आपका प्रोसेसर है, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर द building blocks or components or the part of infrastructure. Okay, you may see these three services on the right side. This vertical. The one is availability, the performance, and the security. These are the non-functional services. What? Non-functional. Availability, performance, and security. These are non-functional. So these services we will discuss later in next chapter. At this level, you should understand that these three services are non-functional services. भाई ये क्यों होती है? Availability means make sure that system means infrastructure, application platforms, applications, and data, they are available every time, 24 hours per week. There shouldn't be any disturbance. जैसे आपको WhatsApp अवेलेबल है एवरी टाइम, जिस टाइम आप एक्सेस करें दे आर अवेलेबल टू यू. ओके, दैट इज अवेलेबिलिटी. I'm sorry, they are not disconnected. The next is performance. This is the application or all these components which are highlighted in this block must perform well. अगर कोई चीज स्लो होगी, सर्वर स्लो हो जाती, कितना मसला हो जाता है. बैंक का सर्वर स्लो हो जाता है, कभी कभी एटीएम मशीन आप गए तो उसकी क्या है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है, सर्वर डाउन, यू कैन नॉट प्रोसेस योर ट्रांजैक्शंस. So they must take care of the performance of the application, of the platform, storage, networking, hardware, and all other related software. Security, you see, the important factor
for each and every component. When you are going to process the information, it must be secure. Your application in which data is managed must be secure. Platform secure होना चाहिए, और all these infrastructure components and user device, आपकी मोबाइल secure होनी चाहिए, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी कंपोनेंट्स होने चाहिए, प्रोसेसिंग पावर सिक्योर हो, स्टोरेज जहाँ पे डेटा स्टोर है वो सिक्योर होना चाहिए, नेटवर्किंग कोई हैक ना कर सके, डेटा सेंटर सिक्योर होना चाहिए. We use different components are the we can say things to secure all these components. वो कैसे होते हैं वो आगे जाके देखिए. अगर if these things are not secure, if your mobile is not secure, you are vulnerable, means your data can be hacked. For example, अगर WhatsApp, even though it is not 100% secure, we cannot say that all these जो ये चीज़ें हैं आपकी एप्लीकेशंस फॉर जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होती है, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सिक्योर नहीं होती. योर डेटा इज ऑलवेज विजिबल टू मैनी पीपल्स, नॉट ओनली हैकर. जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ तो लेंगे. आपको जैसे व्हाट्सएप की फ्री सर्विस मिल रही है, फेसबुक की फ्री सर्विस मिल रही है, तो ये आपको क्यों फ्री सर्विस दे रहे हैं? कोई बुखार फ्री में नहीं देता, आप फ्री में ये चीजें ले रहे हैं. बिकॉज दे आर यूजिंग योर डेटा, दे आर टेकिंग योर डेटा. एंड अदर आपको दिखाया व्हाट्सएप पे थोड़ा ये सिक्योरिटी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है. उसमें क्या होता है कि थर्ड पर्सन जो भी आपकी कम्युनिकेशन, दो बंदों के बीच में जो भी मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो थर्ड पर्सन उनको अगर हैक भी कर ले कि भाई पर्सन ए पर्सन बी को क्या सेंड कर रहा है, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में. इनक्रिप्टेड फॉर्मेट क्या होता है? मींस अनरीडेबल फॉर्मेट. सो इन दोनों के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है. दैट इज सिक्योरिटी पर्पस. इवन दो ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, देयर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स, बट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फिर भी है. So now we will discuss each and every component in more detail. So our first component is process information. So many organizations, they implement their business process. Q, because they need to fulfill their requirements or they need to complete their mission. Lot of business applications are there. एक बंदा शॉपकीपर क्यों बिजनेस एप्लीकेशन यूज कर रहा है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट विजन टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, टू गिव to quick the process and to give facility to the customers and all these things. So all the processes are the unique related to the business. यूनिक का मतलब क्या हुआ? मीन्स जिस टाइप का बिजनेस होगा इस टाइप का प्रोसेस इंफॉर्मेशन होगा. बैंकिंग बिजनेस है तो उसकी अपनी डेटा उसके मुताबिक प्रोसेस होगी. अब शॉप का बिजनेस है, उसका डेटा अपने मुताबिक प्रोसेस होगा. सो ये प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन डिफरेंशिएट करती है कि किस टाइप की एप्लीकेशन है और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है. सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस इज distinguished from each other based on their processed data. मैंने जैसे बताया बैंक का अपना डेटा प्रोसेस होता है क्योंकि वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू शॉप के डेटा से. और एक यूनिवर्सिटी का डेटा डिफरेंट होता है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं. बैंक में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं. शॉप की अपनी जो चीज़ें होती हैं, जैसे शॉपकीपर सेल आउट करता है, उसकी अपनी डेटा प्रोसेस होता है. इसलिए उससे पता चल जाता है कि ये शॉप का डेटा है, ये बैंक का डेटा है, ये यूनिवर्सिटी का डेटा है. So when business is processed, तो वो चीजें क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है और यूज इंफॉर्मेशन करता है. अच्छा, इंफॉर्मेशन क्रिएट कैसे करता है वो एक अलग कहानी है, बहुत ज्यादा. वो एक बड़ा बहुत अलग सब्जेक्ट है जिसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं.
कि एक डेटा है उससे एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, काम की चीज एक्सट्रैक्ट करना, वो इंशाल्लाह ये चीज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्लास में। So I think it is enough for today's lecture, बेटा। So next lecture में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। Okay, let me check आपकी अटेंडेंस लग गई है ऑनलाइन। That's good. So here is your attendance. Mr. Umer Mustafa is present. Tehreem Abid, Tabish Warkha, तहरीम इकबाल 2 है, तहरीम जीशान हैदर, राव हसन, अमानुल्लाह, बहावुल, हिजबुल्लाह, एजाज, जुहैब, मोहम्मद अवैस, आतिक, उजैर, उसामा, यासिर जब्बार, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आज के सेशन को। ठीक है बेटा। सर ये सेक्शन आई थिंक रिकॉर्ड किया है आपने? जी बेटा, रिकॉर्डेड है सर। ये मिल सकता है क्योंकि हाँ, शेयर हो जाएगा आपके इसमें गूगल क्लासरूम में बेटा, शेयर हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। थैंक यू लॉट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। आशाणी हाँ जी शान, कोई समझ में आयो है? बस लो अच्छा तो लगी ग्रुप में शाणी हर बार ये मना सर इन्हनि खे छॾे ॾे, रावत ने त सही न चइबो। हाँ मां त इन्हनि खे चयो आहे उहो छॾियो तव्हां खुले सही ए यूनिवर्सिटी से सब कुछ तो असलो वरिया से है कुझु बि कोन्हे। यूनिवर्सिटी पढ़ो साईं, तव्हां पोइ ख़बर पवंदी। साईं मूंखे भलो थो लॻे। अरे साईं भलो आ, मगर इंग्लिश समझ कोन थी अचे। छा अरे साईं भलो रावत साहब, ॿ टे ॾींहं थी विया गुज़ारे सही यूनिवर्सिटी में बैग ते ॾिसो करजो। चुप कर, मुझे ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां यूनिवर्सिटी में आयो यार, हा सही आहे इंग्लिश नथी अचे यार। ॾिस असां 12 ताईं जेको ईअं तेरी पढ़िया सरकारी स्कूलनि में, असांखे अंग्रेजी न ईंदी। थिएव क्या काल एंड कयो किथे ॿिए हंधि join कयो। ठीकु आहे ठीकु आहे।